अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब, तहसानी दोस्तन हुन वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर अच्छ तोह ताम तुहंदन गरन ताम तुहंदन टीवी स्क्रीनन ताम खुसूसन तुहंदन दिलन ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम डीडी कशर पे जाना नसियो तुही ज आज दिसंबर रेतच 21 तारीख तो नाज़रीन मोहतरम अमे अलाव शायद आज रात 12 बजे ठुक ठुक मा गो कनन या कह मा नबर किन नजर गोमुत खैर नजर आसे गोमुत या नासे गोमुत मगर सह वनकस प्रथ कुन गरस अंदर मौजूद कुन नत कुन कमरस अंदर मौजूद हरगा कूनसी मज वनकस आस बिहित मगर वनकस सह प्रथ कुन गरस मज मौजूद मुमकिन कि यथ स्टूडियोस मज तम आस मौजूद हेक्यू वनित क्या बिल्कुल चिलई कलान का आगाज सपुद तो अजकि पे लगातार 40 दुहन ताम चिलई कलान यम दह वचिन सो शक्ल आसान जहनन मज ब्रोह यो जन वक्त सत वनकस न ब्लर गमज अत हेकन कह वजूहत वजह ये जन क्लाइमेटिक चेंज इंटरवेंशन यमिक ड्राइवर्स असी या ब्या वजह ये जन वनकन किस जदीद दौरस मज अस नश सहूलियत दस्तियाब यम सत वंद वंद बासान कह ब्रोह यम न फेसिलिटीज दस्तियाब आस तम सात वंद पज पे वंद बासान आज शायद अत यह वजह तसित खबर सन यम जन लॉकट बच्चे या नव नस्ल नव पोत खबर यम हेकना पर्जनवित न हेकना पर्जनवित मगर यम जन सन बुजुर्ग सन जिठ तिमो आस जरूर पर्जनोमुत चिलई कलान यु जन फारसी लफ्ज यमुक मतलब चिलई मतलब गई tzatji कलान मतलब गो बोर्ड यम सात लॉकट न मे पन्निस लॉकचारस मज याद गोडनेथ वन पगह चिलई कलान अत नेबर कन नेबर नेरुन कह लॉकट क्या पता जहनस मज सो खाक बनान सो स्केच बनान कि यह जरूर कह खौफनाक शख्स नेबर कन बिहित नेबर कन रटिस नी मगर तिस कत दरअसल अगर शीन पे न तम ब्रो तो वन कट कुछ लगान यानी टेम्परेचर डाउन गसान तम पे सह फ्रीज गसान ये शीन युस जन सान खतर हेको यह वनित बड़ा असल कत खजान सान खतर कित कन अगर जमीनी यानी यम जन मदनी इलाके तिमन पे अगर सन नजर आसे बालई इलाकन पे सन नजर जरूर आसान कि अत युस जन शीन ये लगित गि अमे आफ्ताब युस जन तपिश तम सके वार 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 ये गलित युस जन रेत काल कलन मज वसित नालन मज वसित अस ताम वात सान खतर अख बोड़ खजान आसान आराम करान पूर रेत कलिस त्रेश ये जरिए सान बापत मगर नाज़रीन मोहतरम वक्त सत आज वनकस
یم سات سام ہیوان خبر یہ چلے کلان چھا تیُتھ چلے کلان یُس زن برونٹھ اوس چلے کلانس منٛز ٲسۍ امہِ علاوٕ واریاہ ایکٹیویٹیٖز آسان سُہ بوٗزیو تُہۍ پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن نِش ضروٗر پروگرامُک سلسلہٕ پکناوو أسۍ برونٛہہ أزکِس پروگرامس منٛز شرفہِ میزبٲنی اسہِ حٲصِل بہٕ روزٕ تُہنٛز میزبان اقرا آخوند تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان چھِ وساب جیلانی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ اقرا آپ کا. صبح بخیر ناظرین, آداب, السلام علیکم. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں بہت بہت خوش آمدید. ایک اور روشن صبح آپ سب کو مبارک, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمایا. اور ناظرین محترم, تمہید میں ہی کچھ اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں موسم کے حوالے سے, شاہراہوں کے حوالے سے, اور کیا رہیں گے آج دن بھر موسم کے مزاج اور شاہراہوں کے حال. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ناظرین محترم, سری نگر جموں لہ میں موسم صاف رہے گا. سری نگر میں زیادہ سے 10 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -2 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. لہ میں کم سے کم -6 ڈگری, کم سے کم -19 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ -6 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. تو شدید سردی ہوگی لہ میں. اور اس کے علاوہ ناظرین یہ تو موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ پہ آج کرگل ٹو سری نگر کی طرف دونوں گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے. مغل روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. تاہم مزید جانکاری کے لیے, کٹ آف ٹائمنگز وغیرہ کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہے, نمبرات پر کال کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی جا کر اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین محترم, آج 21 ڈسمبر 2022 ات پہ آغاز مز دوب اقراہن کہ آج چلے کلانک گۄڈنیُک دۄہ, تو میانہ طرف تہ سارنی خوشاوی خیر آمد تو مبارکباد. ناظرین محترم, مبارکباد او موجود کیازکہ چلے کلان اللہ تعالیٰ پن اخ دلبری بخشمت. حالانکہ سارنی موسمن پن اخ اہمیت آسان, مگر ناظرین محترم چلے کلانس مز یتھے یہ شین پیوان, یہ شینہ تھش پیوان, یہ کوتاہ خوش کران اس گۄڈٕ وٕچھُن, تمہ پتہٕ اتھ لاگُن, تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ بچہِ آسان انتظارس مز تہِ کر گژھِ یہِ جمع تہٕ أسۍ کرو شِنہٕ جنگ. بیٚیہِ ناظرین بیٛاکھ اکھ قۄدرتُک سُہ نظام چھُ یہِ کہِ یُس یہِ شیٖن یتھ منٛز یُتھُے یہِ شیٖن چھُ پیوان تہٕ یہِ چھُ پگہٕچ تیٲری کران. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِنہ ایز اے انسان پگہٕچ تیٲری کران, پننہِ پگہُک سنٛز کران, یِتھا پٲٹھۍ چھُ یہِ چلے کلان تہِ پگہٕچ تیٲری کران. سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ناظرین محترم, یُتھُے یہِ کوسارن, یُتھُے یہِ بالن, یُتھُے نینن یہِ شیٖن چھُ پیوان, یُتھُے یہِ یک چھُ پیوان, پوٚتُس چھُ یہِ یک اتہِ لگان, کیازکہِ یِمنٕے ژتجِہن دۄہن منٛز چھُ یہِ فریز گژھان, یِمنٕے 40 دۄہن منٛز چھُ یہِ یک لگان, پوٚتُس چھُ وارٕ یہِ یک پگلان تہٕ اسہِ تانۍ چھُ یہِ تریش واتان پوٚتُس رٮ۪تہٕ کالِس منٛز. بیٚیہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اقرا کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان سُہ خوٗبصوٗرت سبزار چھُ آسان سٲرسٕے, خوٗبصوٗرتی چھِ آسان سٲرسٕے, یہِ چھُ خۄش کران. مگر یہِ چھُ تیٚلی مُمکِن ییٚلہِ یہِ یک لگہِ, اگر نہٕ یہِ یک لگہِ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ پاسبل کینٛہہ. سُہ چھُ لگان یِمنٕے 40 دۄہن منٛز. پوٚت چھُ أسۍ وٕچھان کۄلن منٛز چھُ آسان آب. زیٖٹھ ونان دپان أسۍ کہِ اگر بالٲیی علاقن شیٖن پیٚیہِ نہ یِمن 40 دۄہن پیوٚن گوٚژھ, مگر مٲدٲنی علاقن گوٚژھ نہٕ پیوٚن کینٛہہ, تِکیازِ کہِ اگر ییٚتہِ لگہِ تہٕ گژھِ, تمہِ پتہٕ چھُنہ نٮ۪بر تہِ آسان نیرُن. تہٕ بُزرگن تہٕ بچن اوس اکثر یِوان یہِ وننہٕ کہِ نٮ۪بر چھُنہٕ یِمن دۄہن نیرُن کیٛاہ چھُ شِشُر تب ہیٚکہِ لٔگِتھ. بیٚیہِ چھُ اکھ اقرا بیٛاکھ اکھ چیٖز, سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ زِ کہِ یہِ چھُ اَسہِ کنیکٹِڈ تھاوان, یہِ چھُ اَسہِ جوٗڑِتھ تھاوان. سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ رٮ۪تہٕ کالِس منٛز چھِ أسۍ اکثر وٕچھان کہِ أسۍ یُتھُے اور چھِ یِوان تھٔکِتھ, أسۍ چھِ آسان پننٮ۪ن کمرن منٛز, پر یُتھُے ونٛدس منٛز چھِ أسۍ چھِ آسان حمامس منٛز چھِ أسۍ پریفر کران بِہُن, یا اِکوٹے چھِ أسۍ پریفر کران. سُہ چھُ گیٹ ٹُگیدر تہِ چھُ اکھ کران. تہٕ اللہ تعالیٰ ہس کرو أسۍ یِہوے دُعا کہِ یہِ چلے کلان أژِم تہِ خٲر سان تہٕ نیٖرِن تہِ خٲر سان. تہٕ خٲر ناظرین محترم, پروگرام کِس آغازسٕے منٛز چھِ أسۍ خوٗبصوٗرت سوگات اکھ واتناوان تۄہہِ تانۍ. آز تہِ چھِ اَسہِ تمیُک کیوٗن چھُ اَسہِ تہِ تھوٚمُت, احتمام چھُ تھوٚمُت. ؤلِو بوزو گۄڈٕ شازیا بشیٖرنہِ آوازِ منٛز یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ. چایہِ کپ چھُو تۄہہِ اتھس کٮ۪تھ, اَتہِ تہِ چھُ برونٛٹھ کَنۍ, تہٕ ؤلِو بوزو یہِ خوٗبصوٗرت ٹٲلۍ. वन है
जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या मन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या मन है बदलुक हाल Trishot katha boznuk tariz yek tarha Trishot katha boznuk tariz yek tarha Rava pakak yudluk ze daiv nahi kya Rava pakak yudluk ze daiv nahi kya जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या मन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या मन है बदलुक हाल Suçaz divanan kalktay nayak şu insan Suçaz divanan kalktay nayak şu insan Dil kus çukunun bazras प्रथ जाइव नहीं क्या दिल कुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या मन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या मन है बदलुक हाल मन है बदलुक हाल मन है बदलुक हाल گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है चलते हैं।
आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और हम जानते हैं कि अब आपको इंतज़ार होगा कि हमारे साथ प्रोग्राम में कौन मेहमान तशरीफ फरमा है। उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में जो मेहमान तशरीफ फरमा है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ख़ास हुनर जो उन्होंने सीखा, एक ख़ास फ़न जो उन्होंने वक्त के साथ साथ सीखा है, इसकी वजह से वो हम सब में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक तो होता है हुनर सीखना, उसके बाद हुनर सीख के क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उसमें जिद्दत लाना। और हाल ही में जब अवाम की आवाज़ में LG मनोज सिन्हा साहब ने उनका जिक्र किया, न सिर्फ उनका जिक्र किया बल्कि उस फन का भी जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है हम सब ने सुनकर, वो कहते हैं ना कि दादो तहसीन तो ज़रूर दी होगी। वो कोई नई नहीं है क्योंकि इससे कबल भी आपने उन्हें शो में देखा है, लेकिन इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। और अगर हम उनके पेशे वाराना ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो बहसत असिस्टेंट इंजीनियर इस वक्त वो R&B डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हमारी मुराद है करालकूर ऑफ कश्मीर साइमा शफी साहिबा से। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से बुलाने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बार बार मिलना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। ये खूबसूरत से बर्तन जो इस वक्त जिनसे हमारा ये टेबल सजा हुआ है, इसमें मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है, कश्मीरी शेर के रंग रंग थूर इमकरालन बानई ब्योन ब्योन कोर नखना कोश के हिंद्राई हल कर के जाना नहीं छामेन पोश। इस ताल्लुक से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे लिए तो आप नई नहीं हैं और कई सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए भी आप नई नहीं हैं, जो बिलखुसूस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो और एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ TV देखते हैं और उसमें सिर्फ मॉर्निंग शो देखते हैं। उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए आगाज़ से ही हम करेंगे आगाज़ के साइमा कहाँ पैदा हुई और फिर बुनियादी तालीम कहाँ हासिल की। मैं डाउनटाउन सफ़ाकदल में पैदा हुई हूँ और बुनियादी तालीम मैंने श्रीनगर में ही हासिल की है, अलग अलग स्कूल से की है और फिर फर्दर स्टडीज़ भी कश्मीर से ही की है। हाँ, सिर्फ मास्टर्स मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। सो मेरी एजुकेशन लेवल यहीं से है। हाँ, पॉटरी मैंने बेंगलुरु से सीखी। अच्छा। आपने जिक्र किया कि इसमें अलग अलग स्कूल से आपने ये पढ़ाई की है, तो क्या वजह है अलग अलग स्कूलों में क्या यूजुअली 10th तान कून स्कूल या 12th तान, तो क्या वजह है तमिक वजह क्या डाउनटाउन तो पाई कि फ्रॉम द 90s जो रीजंस होते हैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग थे तब। अच्छा। तो आज जैसे सहूलियतें हैं हमारे पास तब उतनी नहीं थी, तो कम्यूट करना डिफिकल्ट होता था। फिर हम अलग अलग जगहों पे एग्जैक्टली तो मतलब डिस्ट्रिक्ट का श्रीनगरी हमेशा, मगर माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड कि इसको बेटर, जहाँ पे बेटर तालीम हो वहाँ पे हम उसको दे। सो दे वर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर माय स्टडीज, तो इसीलिए कुछ स्कूल्स मुझे बदलने पड़े। और शुरू में आई वॉज इन क्रच, वो कश्मीरी पंडित्स का था, इसलिए फिर वो चेंज करना पड़ा। फिर मैं न्यू कॉन्वेंट स्कूल में थी, फिर मैं आर्य समाज स्कूल में थी, फिर फाइनली मैं मेलनसन चली गई। सो इसीलिए स्कूल्स भी चेंज करें। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो मेरे जहन में सवाल है वो कई सारे जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं उनके जहनों में भी इस तरह का सवाल होगा, वो ये कि पोएट्री की और किस तरह से आप आई और क्यों आई? ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बोलना, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को जो बनाया, हर किसी को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया गया है और वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है जिसको वो मकसद पता चल जाए। क्योंकि हम अगर अल्लाह ताला देता है तो वो किसी ना किसी को वसीला बनाता है। और मुझे लगता है कि इस सेक्टर को बहुत ज़रूरत थी एक अटेंशन की,
मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें हमारे पास माहिर नहीं है, हमारे पास, क्योंकि हमारा एक मीरास है। इसमें ऐसे लोग हैं कि जिस लेवल तक शायद हम सोच भी नहीं सकते, जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसके क्राफ्ट जो होता है वहाँ पे भी इतना टैलेंट नहीं है जितना हमारे पास है, लेकिन इनके पास अटेंशन नहीं था, लोग शायद भूल गए थे। तो शायद ये करने के लिए कुछ इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, क्योंकि आपको उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए बहुत सारी रास्तों से जाना पड़ता है, फिर आप वो रास्ते खुद चुनते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे कि मैं बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी, एंड यूजुअली पीपल थिंक कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है खुद ठीक हो जाएगा, बट आई बिलीव कि एक्सटर्नल हेल्प तो ज़रूरत है, सपोर्ट सिस्टम ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। अब बहुत फिर भी बात होती है, फिर भी कम है। सपोर्ट सिस्टम एक अलग ही चीज़ होती है, बट सेल्फ हेल्प अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इवॉल्व होना है, मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है, और टिल आप जब तक कब्र में नहीं जाते आपको सीखना है। तो आर्ट की तरफ जो मेरा रजू था वो बचपन से था, लेकिन पॉटरी की तरफ नहीं था। ये आइटम्स पसंद थे, कल्चर मुझे ऑब्वियसली डाउनटाउन से है हम, तो डाउनटाउन के जो होते हैं वो हमेशा हाथ के कामों के लिए बहुत सारा अट्रैक्शन होता है उनमें। और गूगल ने मुझे पॉटरी तक पहुंचाया और उसके बाद बेंगलुरु पहुंचाया, और बेंगलुरु से मुझे एक आइडिया आया कि हमारे कश्मीर में भी जो ये पॉटरी है, फिर यहाँ के लोगों तक पहुंचाया। और जब इनसे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में पॉटरी की ज़रूरत थी, इन लोगों की ज़िंदगी में किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मैं बनने की कोशिश करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह टू सम एक्सटेंट मैंने कुछ किया। आपकी बातों से बहुत सारी बातें निकली। आपको मेंटल हेल्थ इशू जो एक वारिया बोर्ड कंसर्न जो साइंस सोसाइटी में, और जिसके हवाले से हम नहीं बात करते हैं, पर उससे पहले जैसा कि सामा आपने कोई जिक्र किया, आप बेंगलोर चले गए, ठीक है, तो पर इंजीनियरिंग का आपका एक अच्छा खासा ठीक ठाक हो रहा था, और उस एज में करते ही तुम्हें जॉब तो मिली, और सेटल डाउन, पीपल सेटल डाउन इन लाइफ, बट आपने एक डिफरेंट पाथ चुना, ठीक है। तो क्या वजह थी उसकी, और खुसूसन जो आपने ये चुना कराल कम, बिकॉज आप देखते हैं ये बिल्कुल हम भूल चुके थे आखिर, तो क्या वजह थी इसकी? जैसे मैंने बताया कि आपको चुना जाता है, और दूसरा आपने एक बात बताई कि सेटल डाउन, पीपल थिंक कि अब जॉब हो गई या और कुछ हो गया, वी सेटल डाउन। मेरा ये मानना है कि ये दुनिया एक परमानेंट जगह तो नहीं है, ये एक जर्नी है। आपने ये जर्नी कंप्लीट करनी है, किसकी कितनी लिखी हुई है वो पता नहीं है, और इस जर्नी के बाद आपको असल दुनिया में जाना है। तो इस जर्नी में आप कैसे सेटल डाउन फील कर सकते हैं? टिल यू आर अलाइव, टिल यू हैव, एक प्रोसेस है, आपको इवॉल्व होना है। अल्हम्दुलिल्लाह एट वेरी यंग एज, आई गेस आई वाज जस्ट 22 और 23 व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, आई वाज हैविंग अ सिक्योर जॉब। तो जो बहुतों का ड्रीम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ऐसा हुआ। लेकिन जब मेरा ये मानना है कि इंसान में इतनी काबिलियत अल्लाह ताला ने दी है, बहुत सारे डायमेंशन है, पर्टिकुलरली वुमेन वी आर वेरी मल्टीटास्किंग, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग नहीं हैं, देयर आर डिफरेंट। तो ये जो मल्टी टास्किंग हर एक इंसान होता है, बट कोई उस चीज को फिर कहता है अब तो ये मिल गया, वो रुक जाता है। तो मुझे लगता है मैं रुकी नहीं। अच्छा। और मुझे लगता है कि मैंने ये सोचा कि नहीं, आई एम मेड फॉर समथिंग, अल्लाह ताला मुझसे कोई ना कोई काम लेना चाहता है, वो क्या है, दैट्स व्हाई देयर वाज पीस वाज मिसिंग। और मैंने जैसे कहा मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आप इसको एक ये भी कह सकते हैं कि पॉटरी मैंने सर्च किया तो इट इज़ वेरी स्ट्रेस बस्टर, एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप एंजाइटी से जाते हैं या आपको कोई ऐसा चल रहा है, स्ट्रेस में है, तो आप पॉटरी करें, बिकॉज क्ले में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, जब आपकी बॉडी के साथ टच करता है, हाथ के साथ टच करता है, आप यस सम हार्मोन्स गेट रिलीज, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो बच्चे, अब तो मुझे पता नहीं है, शायद वो सेल फोन्स के साथ सिस्टम के ज्यादा क्रिएटिव, सो इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि जिंदगी जो है कंटिन्यूस जर्नी है, और तब तक इसे हमें सफ़र करते रहना है जब तक हम दूसरी दुनिया की ओर रुख न करें। इसी तरह से मैं भी जब कभी सफ़र करने का मौका मिलता है तो मुझे भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हमारी कम्युनिटी के कुम्हार इमजन बिजती कराल इमजन कराल कम करान, तिम वारिया इश्यूज शेयर करान, वनान कि
इस कम ये गोड़ ना पकान ब्रो आज छन वन तमे आय पकान ब्रो अस नसा छु न हवानी कह बान हालांकि अस त करे कोशिश रंग फश बाकी चीज मगर तव पत छु ये हवानी कह पन्नी जाय क्या मुशाहिद करू तुम चूंकि तु छु गछान यमन जायन यमन निश क्रालन निश बेहवान कत बात कर तुम क्या मुशाहिद करू ये मैं यम तो कथ वनो ना यमे पगर तो यम कर मैं कंस हिंद वनस पे या गूगल न्यूज पर्न पे क्या बह गयस हर कुन जाय ये क्राल कम गसान या गसान मैं कोर अख गोडनुक अख एनालिसिस कि अगर यम हथ गर करान वन जी गर वजह पत कोर मैं एनालाइज कि यम यंगस्टर्स तम वन अस क्या करो ये कम पत कोर मैं एनालाइज कि कोर किस पे हेकन मे कथ मे विज विज दिमागस मज गसान कि ये मैं एक लेडी वोन कोर मनु क्या त्रट सन यह बह बार बार वन क्या यह वोन तम मे तो बह गयस अत पे ना यह मे पर्सपेक्टिव चेंज कर तो यह तुम वनमो कि यम हेवान क्या इट्स फैक्ट क्या विथ टाइम बदलाव हर कुछ चीज बदलाव चेंज मगर इस एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यमिक अस मज आय तम चेंजेस कि विद द डेवलपिंग नेशंस वी फॉरगेट कि कल्चर बेसिक आइडेंटिटी अगर तुम पन कल्चर मशरू ना योरिक तो ना तौर यह थवन डिक्लाइन गो मेजर डिक्लाइन गो माइग्रेशन क्या तिहद कश्मीरी पंडित तम चीज इस्तेमाल करान मे पन्नो बुजुर्गों नश बूजमुत पन्नो जिठो नश बूजमुत कि तम जहीन तिमन पाई हेल्थ कॉन्शियस तम ज्यादा तिमन बिकॉज दे हैव सो मेनी डाइटीज जिनको वो वर्शिप करते हैं तो इनके लिए यूजेज बहुत ज्यादा था तो सेल्स ती पत गई अख फैक्टर कि गो डिक्लाइन दोम फैक्टर गो कि नयन नयन चीजन कुन अट्रैक्ट गसान मगर यह वुचान वोन तुम वो चिलाई कलान हर कह मौसम जरूरी तो यस दुनिया मज फॉर एग्जाम्पल यम चीज ग्लोबली वार्मिंग या एनवायरमेंट इफेक्ट कर सोचुन कम चीज यह सोचान गई तिमन चीजन कुन यम शायद सेहत रंग तो मतलब ठीक ना एनवायरमेंट तो अगर वो बाई 2030 दुनिया में जो अगर देखेंगे सिरेमिक पॉटरी का जो शेयर है दैट इज अराउंड इस टाइम पे 10.41 बिलियन US डॉलर्स तो ये इंक्रीज गसन वोल 3.8% यानी ये इंक्रीज होने वाला है क्योंकि लोग शिफ्ट हो रहे हैं लोगों का टेबल वेयर आर्ट वेयर चेंज हो रहा है टुवर्ड्स दिस अर्दन वेयर्स और आप को ये हैरानी होगी जान के कि 40.1% शेयर जो है वो एशियन पैसिफिक कंट्रीज का है जिसमें आता है इंडिया चाइना एंड जापान बे अगर तुम वो इंडिया मज मेजर मैन्युफैक्चरिंग अत मज सह गुजरात उत्तर प्रदेश तो तमिलनाडु अगर तुम वो स्किल यम सन तम न्यूलिथिक एज पे क्या बुरजुहामा साइट फाइंड आउट गम यानी न्यूलिथिक एज पे अगर करान कत स्किलफुल तम क्या लीड करान तम प्रोडक्शन करान तम क्या एग्जैक्टली दम तिमन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कर आमुत कि इंडिया मज ग ऑलमोस्ट 20 million US dollars invest for pottery. बिल्कुल तो फरमो सही बे कि rather than मतलब consumer of technology or consumer of things we should be a creators it was to पान करा create इस पे हम जरूर आएंगे वापस इस पे एक तफसील हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकना होगा नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के गटि मजन यी जुनगाश ऐसे रोजन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं बाहर जाने की क्या जरूरत है गोल्ड ही तो लाना है गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स हाँ ठीक है चलते हैं
आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हुआ जाता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। चिलई कलां सेट टू इंटेंसिफाई चिल फ्रॉम टुडे, कश्मीर कंटिन्यूज टू रिमेन ग्रिप्ड बाय कोल्ड वेव। जी बस आप जिस तरह से चलाई हमने आगाज में ही हमने किया और इस ताल्लुक से खबर भी आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे ना शायद जिन्हें मालूम भी नहीं होगा, मालूम अगर होगा भी शायद याद नहीं होगा कि आज से स्टार्ट हो रहे चलाई कलां। तो नाज़रीन मोहतरम, आपकी जानकारी के लिए, मालूमात के लिए बता दें कि आज से चलाई कलां का आगाज हुआ, बराबर 40 दिनों तक जारी रहेगा। सर, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस उर्दू रोजनामे से भी ये एक अहम सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। जम्मू और कश्मीर में G20 सरबराही इजलास की बड़े पैमाने पर तैयारियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर का आला सतही इजलास में अफसरों के साथ तबादला ख्याल, तमाम मकामी यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में खुसूसी सेमिनार मुनक्किद करने पर जोर। जी मेरे पास एक मकामी उर्दू रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। कोविड के हवाले से खबर है, जम्मू कश्मीर में कोरोना की लहर तकरीबन ख़त्म, किसी भी सूबे में कोई नया केस नहीं। 2 शफ़ा एक अच्छी खबर कोविड के हवाले से। हालांकि वांदशुओं के एक्सपेक्ट करा कि उनके से चार जुकाम, तो उसकी वजह से कोविड के भी जो है आसार बढ़ जाते हैं, बड़ी एक अच्छी खबर है। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार में एक खास सर्वे हुई है और उस खास सर्वे के ताल्लुक से ये खबर हुई है। प्लास्टिक वेस्ट ऑन ब्राउन बेयर्स मेनू, 75% डाइड ऑफ ब्राउन बेयर्स इन कश्मीर, प्लास्टिक, चॉकलेट्स, बिरयानी सर्वे। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। प्लॉट थिकन्स इज कार्टून लुलाबी किलिंग कश्मीर्स इंडिजिनस स्टोरी टेलिंग, वी हैव लॉस्ट कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज अ सोसाइटी। जी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम खेलों के ताल्लुक से इसमें यह खबर शाया हुई है। हमारी तवज्जो खेलों की देर पा तरक्की की तरफ मरकूज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का आगाज, 100 यूनिवर्सिटियों की शिरकत। जी मेरे पास आखिरी मकामी उर्दू रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। डेंगू से मजीद 4 मुतासिर, मजमूई तादाद 8259। जी नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ आपके पास कोई, मैं भूल गया मेरे पास नाज़रीन मोहतरम आखिरी रोजनामा मेरे पास भी बचा है। ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से भी हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाते चले। AC अप्रूव्स रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, लैंड ट्रांसफर फॉर डिफरेंट पब्लिक प्रपोजल्स ऑल्सो ओकेड। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है साइमा शफी, ये मन आम नाम यूजुअली प्रोग्राम करालकूर। तो नाज़रीन मोहतरम, इनसे गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर उससे पहले नाज़रीन मोहतरम आप जानते हैं इंफोटेनमेंट का पूरा पैकेज होता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है। और इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक सेगमेंट हम आपके खिदमत में पेश करते हैं, गुड मॉर्निंग एजुकेशन का सेगमेंट, जिसे पेश कर रहे हैं डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। पहले देखते हैं ये सेगमेंट, उसके बाद आज के मेहमान से गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे 21वीं सदी में जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, इसमें कई बहुत चीजें अच्छी बेहतर बताई गई हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जब ये इंप्लीमेंट होंगी तो तब ही रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट कि हम पुराने घोड़े पे चढ़ेंगे, वी आर बैकिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्स। हम उसी वाले सिस्टम से चलते रहेंगे जो पुराना सिस्टम था कि आप सिर्फ वन साइड हम देते रहेंगे, बच्चे वापस देंगे और हमको रिगर्जिटेटिंग इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग टेस्ट, वो आगे वाले कामयाब नहीं होंगे बच्चे उससे कि हमने दे दिया वही वापस दो। वी हैव टू मेक देम क्रिएटिव ऑल्सो। हमें एनालिटिकल उनको बनाना पड़ेगा कि आप सोचो बेटा, प्रॉब्लम आपको आने वाली है, वी आर देयर ओनली बिकॉज फॉलिंग इज नेवर फेलिंग। ये बच्चों को सिखाना है, बेटा नंबर कम आ गए कोई बात नहीं, हम आपको जो है ना, वी ट्रस्ट यू,
हमें पता है बेटा आप आगे नंबर ला सकते हो, मेहनत करो, कोई बच्चा फेल नहीं होता, हम बच्चे को फेल कर देते हैं। ये चीज नई चीज है कि हम बच्चे को ये ना बोलें कि हम क्योंकि बच्चे को बोलते हैं तुम फेल कर हो गए हो बेटे, नंबर कम, ना बेटे तुम्हारे एफर्ट्स कम आ गए हैं, वी नो यू कैन डू इट। अगर हम वो चीज एनकरेज करें, वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दें, हम एक्सपेक्टेशन उल्टा कर देते हैं, तुम नंबर कम लाए हो, मुझे नहीं लगता तुम आगे जा सकते हो। अगर ये चीजें हम बच्चों में ये इनकलकेट करें, अगर वी शुड ब्रिंग जॉय टू द क्लासरूम, बच्चे में क्लास आने चाहिए, वो खुश होने चाहिए कि आज मेरा ये टीचर आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज ये टीचर नहीं आना चाहिए, इसको कोई काम पढ़ना चाहिए। ये चीजें तब होंगी जब टीचर्स भी अपने आप में थोड़ी सी चेंज लाएं, पेरेंट्स भी अपने आप में। देखिए वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर व्यू ऑल्सो, बच्चों के अंडरस्टैंड कीजिए, ना कि हम जानते हैं हमें पता है। देखिए मैं अपने वालिद साहब को कहता हूं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो 70-80 साल के थे, तो वो मेरे बेटे से कह रहे थे कि मुझे कंप्यूटर सिखाओ। अब वो कंप्यूटर सीखने के उनको नहीं कह सकते मैं तुम्हारा दादा हूं, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, तुम मुझे क्या सिखाओगे, नहीं। सीखने के लिए हमें बच्चों को अगर सिखाना है तो हमें भी थोड़ा सा वो ईगो छोड़ेगा, क्या बच्चों की लेवल पे आना पड़ेगा। हम बच्चों को जब अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो बच्चों की लेवल पे आ जाइएगा, दैट इज कॉल्ड। अभी हमें उस तरीके से अगर बच्चों को हम करेंगे तो पेडागोजी टीचर्स को मस्ट है, ये एजुकेशन पॉलिसी में मस्त है कि पेडागोजी जब तक बच्चों की अगर हम टीचर्स में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं है, हम अपने तरीके से तो देखते हैं, एडल्ट एज में हम कहते हैं कि वो हमें क्यों नहीं समझते, नहीं समझेंगे, वो एज गैप है। अगर उसको समझना है आपको तो हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। जब बच्चे को गोद में उठाते हैं तो हमें नीचे खुद आना पड़ता है। उसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक माहौल ऐसा बनाएं, क्योंकि देखिए ये माहौल ही है। एक सीड, कोई भी सीड, देखिए हमारा जो दिमाग है ये ऊपर वाले ने बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड बनाया हुआ है, और इसमें जो सीड्स हैं हमारे थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स भरिएगा बच्चे में, वो सीड्स हैं। और उसके साथ जो वो एक्ट करेगा, वो जो मेहनत करेगा, वो जो स्कूल जाएगा, वो करेगा क्यों, क्योंकि वो जो वर्किंग है वो वाटर है। तो समझिए जो दिमाग है दैट इज ए लैंड, ऊपर वाले ने जो दिया फर्टाइल लैंड। कुछ भी नहीं रखेंगे तो उसमें खरपतवार आ जाएगा, वीड्स आ जाएंगे, वो निकालने के लिए सीड्स बेहतरीन चुनिएगा। बेटा यू आर गोइंग टू बिकम, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, गोल सेटिंग बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्शन, दैट मीन्स वाटरिंग, बेटा क्या कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद सबसे ज्यादा फेथ, बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बेटा आई ट्रस्ट यू, वो ट्रस्ट दिखाइएगा, द कॉन्फिडेंस यू पुट इन देम वो वापस वही दे देंगे, क्योंकि जो आपने कॉन्फिडेंस उन बच्चों, तो अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, बचाइएगा नहीं कि आज नंबर कम आए, कोई बात नहीं बेटा, आई नो ये प्रॉब्लम हो गई, कोई ना कोई हो गई होगी, ये गलती तुमसे हो गया, आई नो बेटा तुमने जान के नहीं किया, दोबारा नहीं करेगा। अगर हम कहेंगे तुम तो नालायक हो, ही विल एक्सेप्ट इट सबकॉन्शियसली, और आप चाहे कितना भी बाद में करें पछताएं, क्योंकि एज ए ट्विग इज बेंट सो शैल द ट्री ग्रो, जैसी टहनी बोएंगे अगर वो टेढ़ी उग गई बाद में खड़ा नहीं कर सकता। तो ये 10-15 साल हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों को नर्चर करने के लिए। हमें पहरा देना पड़ेगा एज टीचर्स, पेरेंट्स, हमें देखना पड़ेगा कि वो खड़ा हो जाए अपने, जिस वक्त उसको फेथ आ जाएगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, कर जाएगी और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये बच्चे कामयाब होंगे 21वीं सदी में। हमें आज दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब आपका। और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए सामा शफी इमकराल कूश, और हमारे सामने कुछ ये हैं डिज़ाइंस बने हुए हैं काप शुबनर। तो सामा हमें इसके बारे में बताइए, ये ब्यूटीफुल जो कप है अच्छा इशा ये पेंट कर या कपस तीन ये क्या कर ग्लेज, अच्छा तो इसके बारे में कर सकते हैं। अच्छा पेंट इज, आप कैसे पेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को जो आप खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इट्स अ ग्लेज जो हमें इंश्योर करना है दैट इज फूड सेफ, दैट इज केमिकल फ्री, ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर क्या फायदा है क्ले यूटेंसिल्स यूज करने का। एंड ग्लेज प्रोडक्ट जो होता है दैट उसकी वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग एक एस्थेटिक लुक इंक्रीज होती है जी। और ये पॉटरी है दिस इज ओवन सेफ ऑल्सो। अच्छा यस ये खूबसूरत। अच्छा तो ये हाँ ये हमारे घर में पेड़ है एक हेजलनट, हाँ तो उसका पत्ता मैंने काटा और उसका प्रिंट लिया क्ले पे और ये कन्वर्ट हुआ एंड सेम अदर। तो ये बताइए हमें कि ये अशरा मुझा कि यूजुअली क्राल कम्स करान तिम मतलब ग्लेज यूज करान ये तिम पेंट यूज करान बुगवार या ये तुमक नरस तत पे यूजुअली पेंट आसान करित तो यमन पे इशा ग्लेज ये यूज गसान। ग्लेज
ٹیکنیکس گلیز ٹیکنیکس چھُ مےٚ بوٗزمُت تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ پتہ کہِ کرٛال یِم خانیٲر ٹایلٕز ٲسۍ تِم ٲسۍ مشہوٗر ٹایلٕز گرن منٛز ٲسۍ تِمے استعمال یِوان کرنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ ٲس گلیزِنگ یِوان گژھان آ تِم ٲسۍ نیچرلی ییٚتی مینوفیکچر کران گلیزز پانے کینٛہہ پروڈکٹو سۭتۍ تہٕ تِم گلیزز ٲسۍ استعمال گژھان مگر آن دا یوٹینسلز تِم ہیٚکۍ نہٕ تِم ٹرانسفر کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ کہِ اتھ اکھ وجہ اوس بیٚیہِ یہِ تہِ کہِ تِم گلیز ہیٚکو نہٕ أسۍ یِمن پٮ۪ٹھ ٹرانسفر کٔرِتھ کیازِ کہِ دے آر ناٹ لیڈ فری یہ چھُ اَسہِ انشور کرُن کہ گلیزز وی یوز شوڈ بی لیڈ فری ٹھیک تو اور دوسرا ابھی ریسنٹلی ان پہ ایک اسٹوری بھی ہوئی تھی کھانیاری ٹائلس جو بناتے ہیں وہ ایک ہی بچے ہیں اور ان کو جو ان سے ایک اسٹوڈنٹ نے سیکھا جن سے میں ملی عمر ہے وہ جو اشبر نشاط سائڈ سے رہتے ہیں تو وہ سیکھ رہا ہے سو یس پیپل آر لرننگ دیٹ از تو کیا وجوہات ہے جیسے کہ مطلب اکھ فائنانشل پرابلم ات مز پزی پہ وچان کہ اس نو پوزیشن ات مز کران انویسٹ کیم آلریڈی فیملی کران آمت یہ کار کران تو یہ اکھ ریزن یہ کہ فائنانشل سٹیبلٹی کی مگر ات پہ بہ وچان تہ کہ یہ برونٹ کن ڈیزائن دل کران بڑا اٹریکٹ بیس یتنس آف دا کیمرا پان ون کت کران تو یت کیا پرائز گھان پان ون تہ دپان کہ ما ہمو یہ تو اس دپو کیا وجوہات یہ تو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ایسے یہ اور دل کرتا ہے اس کو یہ خریدنے کا میں نے وہی کہا نا کہ ایک تو اسکل ہے لیکن پتہ نہیں اس کو انہانس کیسے کریں گے کیونکہ ٹیکنالوجیز تو اب ہے نا ان کے پاس تھی نہیں اور جب ینگر جنریشن نے انٹرسٹ نہیں لیا تو وہ کیسے ان کو بتائیں گے اور دوسرا میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد جو تھا مجھے لگتا ہے کہ ایک شیک کرنا تھا کہ کچھ ہے اس میں جس سے وہ بھی شیک ہو گیا اینڈ دے آر لوکنگ فار کہ ہم یہ کیسے سیکھیں گے بیٚیہِ دٔیِم کتھ فائنانشل اوبویسلی ریٹرنس آئی نہٕ تہٕ تِمو ہیوٚچھ نہٕ کِہیٖنۍ دٔیِم یُس اَسہِ بیریر اوس کریٹ کوٚرمُت کاسٹ بیریر یِمو سۭتۍ ٹھیک أسۍ چھِ سوسایٹی منٛز مےٚ چھُنہٕ گۄڈنٮ۪تھ فِکری تران کہِ یہِ سسٹم کیاہ چھُ کہِ کُس چھُ تھوٚد تہٕ کُس چھُ بایسنس کیٛازِ چھُ ریسزم کیٛازِ چھُ یہِ چھُنہٕ مےٚ فِکری تران کینٛہہ اگر أسۍ مطلب اگر أسۍ یقین چھِ کران کہ ہم ایک امہ ہے تو چلیے اس پہ وہ الگ ٹاپک ہے لیکن ییٚلہِ یہ اوس اوبویسلی ایز اے ہیومن بہٕ یژھٕ کہ مےٚ گٔژھ ریسپیکٹ آسٕنۍ ایز اے ہیومن بہٕ یژھٕ کہ سوسایٹی منٛز گٔژھ مےٚ مطلب پیپل شوڈ لک اپ ٹو می یہ چھُ اکھ ہیومن انسٹنکٹ اینی ون کین ڈیزائر تو ان کی بھی یہی خواہشات تھی اینڈ میں نے یہ دیکھا ہے وائی بہتوں کو مجھے معاف اگر آپ کو ابھی بھی لگے کہ کرال ونُن چھُ کینٛہہ غلط چیز آسان کیازکہ بہٕ چھَس پراؤڈلی ونان کہ مےٚ چھِ ونان کرال کوٗر تو میں بہت خوش ہوتی ہوں جب بہت سارے لوگوں کو میرا اصلی نام نہیں پتا ہے کرال کوٗر پتا ہے جو میں نے خود کے لیے چنا اینڈ اگر میں باسان چھُ یہ پزِ پراؤڈ اتھ خٲطرٕ فیل کرُن کیازکہ مینی صوفیز were connected to this work کیازکہ یہِ چھِ میٚژ ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا صٲب تہِ چھُ سۄ چھِ چلو الگ میٚژ مگر میٚژِ سۭتۍ چھِ أسۍ کٲم کران تہٕ أتھۍ میٚژِ منٛز چھُ اَسہِ واپس گژھُن مےٚ چھُ باسان یِہُنٛد درجہِ یوٗتاہ چھُ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سمجھتھٕے مے بی تٔتھۍ أسۍ چھِنہ واریاہ چیٖز چھِنہٕ أسۍ سمجھان تہٕ بہٕ چھَس دپان أسۍ کیٛاہ کرو ییٚلہِ أسۍ یورٕ گژھو مگر شُکر اللہ کا کہ مےٚ کوٚر یہِ کرال وٲڈ یوٗز تہٕ مےٚ چھُ اُمید کہ واریاہ چھِ وۄنۍ اتھ کران مطلب تُہۍ کوٚروٕ ذِکر کہ تُہۍ اور گژھان یِمن نِش تہٕ یِم کران یُس یہِ نٔو پُزیشن نٔو جنریشن چھِ یِم اتھ منٛز اِنویسٹ کران ٹایم یِم ہیٚچھان اتھ یہِ کار یِمن فادرس وادرس نِش تُہۍ گٔژھِو مطلب اگر تُہۍ ونان نہٕ مطلب تۄہہِ ووٚنوٕ اچیومنٹس گورنر صاحب نے میرا ذکر کیا یا لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا آپ کو پتہ ہے ریئل اچیومنٹ مجھے کیا لگتی ہے when I received the news or the messages from the females as well as the males کہ اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ مول موج دِوان کرنہٕ کینٛہہ مگر ییٚلہِ تِمو تُہۍ وٕچھِو تِمو دیُت اَسہِ یہِ کرنہٕ بہت بڑی اچیومنٹ مےٚ آیہِ میسیجز کہ آپ کی وجہ سے اب ہم کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے دیٹ از مائی ریئل اچیومنٹ اور دوسرا ینگسٹرس ٹیکنگ انٹرسٹ آئی ریسیو سو مینی ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سکھائے یا آئی گیو دیم کہ یُس تۄہہِ لوکل چھُو تُہۍ ہیٚچھِو تٔمِس نِش کیازکہ ہمیں ان سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے اور پھر جب میں نے دیکھا ینگسٹرس پکنگ اپ دیر آر مینی ینگسٹرس ناؤ ڈوئنگ اٹ مے بی دا پرسنٹیج از ویری لیس لیکن کہیں سے تو شروعات ہوئی صحیح بات ہے بھی کہا کہ جس طرح سے وہ انکریز ہوگا بائی 2022 ایک پازیٹو سائن ہے میرا ایک سوال ہے کرال کوٗر سے مےٚ چھُ یہِ کپ اتھ منٛز چھا ہٮ۪کوا أسۍ چاے چٮ۪تھ
یہ چھا متیوتا یہ کہ اس ہیکو ونت ہیلتھ کانشیس یس زن آسہ سہ سوچ گۄڈٕ ہتہِ لٹہِ کہ بہٕ چٮ۪مہٕ اتھ منٛز چاے کِنہٕ نہ چھُ سُہ رنٛگ آسان یا باقٕے چیٖز بہٕ ہٮ۪کہٕ اتھ منٛز چاے چٮ۪تھ بہٕ چھَس دپان اگر ٹیسٹ چھُ کرُن وٕنی ہٮ۪کو أسۍ ٹیسٹ کٔرِتھ گۄڈٕنٮ۪تھ چٮ۪مہٕ بٕے چاے تہٕ یس کیازِ کہِ مےٚ چھُ کمپلیٹلی فوڈ سیف اینڈ اٹس اوون سیف اینڈ اٹس انوائرمنٹ سیف اور یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور یہ گلیز ہے جو میں گلیزز جن سے لیتی ہوں دے آر سرٹیفائڈ جو یہ سرٹیفائی کرتے ہیں دیز آر کیمیکل فری اینڈ لیڈ فری اینڈ دے آر فوڈ سیف. صاحبہ جی ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ کہِ یِمے چیٖز تُلِتھ تُہۍ تِمن کرٛالن نِش گژھان چھِو یِم زن بِذٲتی یہِ کٲم کران چھِ تمہِ پتہٕ چھُوکھ ونان کہِ أسۍ ہسا ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ تِمے چیٖز بنٲیِتھ کینٛہہ یِم أسۍ برونٛہہ ٲسۍ بناوان أسۍ ہسا ہٮ۪کو کہِ یہِ تہِ بنٲیِتھ أسۍ ہسا ہٮ۪کو کہِ یہِ کپ تہِ بنٲیِتھ نئے انداز تِہُنٛد تِہنٛز کیٛاہ رِیکشن آسان؟ تِم چھِ اوبویسلی تِم چھِ یژھان تِم چھِ گژھان کیازِ کہِ میٲنِس سٹوڈیوس پٮ۪ٹھ تہِ آے کینٛہہ یِمو وٕچھ اچھا تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو یہِ کران اچھا یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ کران تِم چھِ یژھان ہیٚچھُن توے چھَس بہٕ ہمیشہٕ مےٚ چھِ یہِ سبمِشن کٔرمٕژ ایل جی صٲبس نِش تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو مےٚ اکھ ایوارڈ دیُت وومنس ڈے پہ تو تب بھی میں نے ایک ان کی طرف سے ایک بات چھیڑی تھی اور جو بھی اس میں کچھ کر سکتے ہیں یمن سۭتۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ کتھ واتنٲیِتھ تہٕ بہٕ وٕنکٮ۪س تہِ چھَس وَنان کہ انٹروینشن چھِ کہ وی نیڈ د آرٹزن ایکسچینج پروگرام ییٚتٮ۪تھ سٲنۍ آرٹزن گژھن تِمن جاین ییٚتٮ۪تھ یِم یِہنٛز ایٹ لیٖسٹ انڈسٹری یا فیکٹری چھِ سیٹ اپ تیٚلہِ اَسہِ گژھِ سیٹ اپ سو دیٹ أسۍ ہٮ۪کہون سُہ انڈسٹریز تِم انسٹِٹیوٗٹس ییٚتٮ۪تھ سیٹ اپ کٔرِتھ ییٚتٮ۪تھ پتہٕ یِمے یِم سکل گژھن فٔردر پالش گژھن سکل چھِنہ ماسٹٲرٕس ڈگری کران یہِ ڈگری حٲصِل کٔرِتھ یِمے ہیٚچھناوان پنٕنٮ۪ن ینگر لاٹن تہٕ یہِ گژھِ رِوایو انشاء اللہ تہٕ تِم تہِ ہٮ۪کن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز ییٚکیٛاہ ہُتھس ہُتھ کپس منٛز یِم ہٮ۪کوا أسۍ پنٕنٮ۪ن ناظریٖنن تہِ تِکیٛازِ کہِ تِم تہِ آسن نہٕ سونچان حالانکہِ وُنہِ وٕچھ نہٕ تِمو کینٛہہ ییٚلہِ تِم وُنہِ وٕچھن تِم سونچن کہِ یہِ چھُ کیٛاہ سُہ ؤنِو تُہی. مےٚ چھُ اکھ اِیرِنگ یہِ چھُ میٚژِ ہُنٛد یس آی یوٗجؤلی نیکسٹ سٹیپ مطلب پایُن تہٕ یتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ گلیز کینٛہہ یہِ ہٮ۪کو ایکرِلِک کلر تہِ ٹیراکوٹا جیولری چھِ واریاہ فیمس نیشنلی انٹرنیشنلی تہِ تہٕ یہِ چھُ اکھ سم تھنٛگ یُس کانٛہہ تہِ کوِکلی اتھ خٲطرٕ چھُنہٕ مطلب اِکوپمنٹس تِتھۍ ضروٗرت کینٛہہ یہِ ہٮ۪کہِ کانٛہہ تہِ بیسِک گرِ شروٗع کٔرِتھ تہٕ یہِ چھُ را تہٕ مےٚ چھِ اصلی ٲس مےٚ دلچسپی جیولری سۭتۍ لۄکچار پٮ۪ٹھ چونکہِ چھِ تو اسی لیے میں یہ سب چیزیں بناتی تو یہ چھُ را اینڈ جب آپ یہ جھمکے پھر کلرفل اینڈ یو کین میچ اٹ. یہ ابھی پورا کمپلیٹ نہیں میں نے را اس لیے لایا کمپلیٹ فارم آپ کیا چھُ مطلب یہ سوال چھُ مےٚ یِوان اگر یہ مٹی کے ہے تو امہِ سۭتۍ ما وسن کن اقرا جی وۄنۍ پانے ایگزیکٹلی کیازِ کہِ میٚژ چھِ ویٹ لاس کران ییٚلہِ سۄ ہیٖٹ اپ چھِ گژھان مویسچر چھُ نٮ۪بر نیران یہِ چھُ اکھ. تو اَسہِ دَپتہٕ یُس یہِ چھُ اولڈ یُس یہِ ٹریڈِشنل پاٹری چھےٚ تہٕ وۄنۍ نٔو ماڈٲرن ٹریڈِشنل پاٹری یہِ چھےٚ یِوان ماڈٲرن یتھ منٛز تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ ڈِفرنس چھُ اتھ پانہٕ ؤنۍ اگر أسۍ اولڈ کنسِڈرِنگ تہٕ نِو؟ یہ چھُ تِژھٕے کتھا تِلہٕ اوس گۄڈٕنٮ۪تھ تہِ یِوان وۄنۍ پتہٕ تِم سُہ کِتھ پٲٹھۍ اوس استعمال یِوان کرنہٕ وٕنکٮ۪س تہِ چھُ جیسے اقرا جی چھُ تِلہٕ پھٮ۪رن لوگمُت مےٚ چھُکھ اکھ شال لوگمُت مےٚ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر یہِ کمباین مےٚ تروو نہٕ مگر اسہِ تروو نہٕ پنٕنۍ یہِ کلچرل یِمو تہِ چھُ شال لوگمُت مےٚ تہِ چھُ اتھٕ کامہِ یہِ چھُ اتھٕ کٲم یہِ چھِ اتھٕ کٲم یہِ تروو نہٕ اسہِ کینٛہہ مگر یہِ کوٚر اسہِ تِتھ پٲٹھۍ یوٗز کہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ کنٹِنیوٗ کٔرِتھ وٕنکہِ کٮ۪ن ؤرک پلیسن یا وٕنکٮ۪س اسہِ کُنہِ جایہِ چھُ پریزنٹ کرُن انفیکٹ انٹرنیشنلی چھُ پریزنٹ کرُن تی چھُ اتھ منٛز تہِ مطلب اگر أسۍ یہِ کرٛالہٕ کٲم چھِ کران سکل چھِ تِمے أسۍ چھِ تِم چیٖز کنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ یِم کہِ تُمبکھ نٲر چھِ بناوٕنۍ سۄ چھِ بناوٕنۍ مگر اسہِ چھُ کلب کرُن چیٖزن کہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ماڈٲرن یُس اسہِ مارکیٹ چھُ انٹرنیشنلی یہِ کرِ سُہ اِکوِپ یہ دی سُہ تمیُک یہِ کرِ اٹینشن گریب کسٹمرسن ہُنٛد بیٚیہِ یہِ چھُنہٕ کہِ ضروٗری صرف گلیز پاٹری چلہِ پلین ٹیراکوٹا تہِ چلہِ مگر یہِ چھُ ہمیشہِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو پریزنٹ پنُن تُہۍ کیٛاہ ویلیوٗ چھُ دِوان پننِس وقتس پننہِ اینرجی یُس تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ چھُو تراوان سو دس از واٹ از ریکوائرڈ. تو اکوپمنٹس کے حوالے سے بھی کچھ یہ نئے نئے اکوپمنٹس آیا مارکیٹس میں وہی سیم جو چل رہا ہے اسی سے بنتے ہیں
इक्विपमेंट्स फिलहाल मेरे पास है क्योंकि मैंने भी वो गुजरात से लाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थे, मुझे बहुत मेहनत लगी, इन्वेस्टमेंट लगी और बहुत वक्त, एनर्जी और बहुत आपको पता नहीं होती है। फिर आप कुछ पे ट्रस्ट करते हैं, फिर कुछ बिट्रे भी हो जाता है क्योंकि आप सेलर, आप हमेशा ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन मोड पे यकीन करते हैं। तो लेकिन ये लाने जरूरी थे क्योंकि मैं हर टाइम तो बैंगलोर नहीं जाती या दिल्ली नहीं जाती। बिल्कुल। तो सिर्फ वनकस इस्तेमाल गसान यथ गवर्नमेंट इंटरवेन तौर कि तिमो कर डिस्ट्रीब्यूट पॉटरी व्हील्स, इलेक्ट्रिक व्हील्स, सो गई चेंज, तिम चीज गई मगर वन इक्विपमेंट हमें जरूरत लाइक पयान तिम वुड फायरिंग अच्छे तथ मज ऑप्शंस, गैस हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर सकते हैं, या पिट फायरिंग हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा ये जो पग मिल होती है जिससे ये मिट्टी तैयार होती है, तो ऐसे वुचमुत करा खोरन लत जनान तिमन टाइम लगान ये कर तथ मज टाइम कंज्यूमिंग गसान, तथ खतर इक्विपमेंट यम मे जल्दी गस तैयार, तिम इक्विपमेंट्स या जैसे मैंने प्लेन कहा कि आप इम्प्रिंट लेते हैं, इसके लिए स्लैब रोलर्स आते हैं जिससे फ्लैट, ये जरूरी नहीं है व्हील पे पॉटरी इज नॉट ओनली ऑन व्हील, ये बताना मैं बहुत जरूरी। पॉटरी छन सिर्फ व्हील करो, पॉटरी डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे फ्लैट सरफेसेस अगर तुम वो ये जो मैंने बटर के लिए केस बनाया है, तो इसके लिए जो स्लैब रोल करनी है उसका एक अलग इक्विपमेंट है। तो देयर आर डिफरेंट ये, एंड डेफिनेटली इस पे जितनी बात की जाती है, लेकिन जो हमने प्रोग्राम के आगाज में ही आपके इंट्रोडक्शन में ये भी कहा था कि आप बहसत असिस्टेंट इंजीनियर इस वक्त R&B डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। इस डिपार्टमेंट के बारे में मुख्तसरन बताइएगा और किस तरह की जिम्मेदारी आप पर इस वक्त आयद है उस ताल्लुक से भी। अल्हम्दुलिल्लाह R&B मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, क्योंकि हम जो इंजीनियर्स हैं इस तबके से इस डिपार्टमेंट में, वो यूजुअली रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। और तमाम इंजीनियर जो इसके साथ जुड़े हुए हैं या बाकी वर्क फोर्स जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इंजीनियर्स जुड़े हुए नहीं हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों से भरा पड़ा है, तो वो लोगों की सहूलियतों के लिए काम करते हैं। और जो करंट हमारे चीफ इंजीनियर साहब है, रफीक साहब, ये एक ब्लेसिंग है मुझे लगता है कश्मीर के लिए कि अभी वो इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, क्योंकि वो इतने कंस्ट्रक्टिव है टुवर्ड्स कि हमें लोगों के लिए, बिकॉज वो और मेरे एग्जिम साहब है, मेरे AEE साहब है, मतलब वो एक चीज कहते हैं कि हमें अल्लाह के रजा के लिए काम करना है। तो ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि हमें वो, क्योंकि जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे ये सड़कें तो यहाँ होंगी कि ये फलाने इंजीनियर ने बनाई है। तो यस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है कि बीइंग फीमेल वी हैव ऑल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जब हम इक्वल पे लेते हैं तो हमें इक्वल वर्क भी है। तो यस, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो हमें बहुत, एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट प्रोवाइड्स। एक और डायमेंशन और जिस ताल्लुक से आप काम भी करती आई हैं वो है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और आपने इसका जिक्र भी किया था जब हम एक सवाल के जवाब में आगाज में। इसी से मुंसलिक मेरा एक सवाल होगा, कोई शख्स चल रहा है सड़क पे और हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर कितनी कहानियां चल रही है, हम नहीं जानते क्या सोच रहा है। हम कभी कपड़े पे लगे पैबंद को तो देख लेते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है वो नहीं देख लेते, आंखें नहीं पढ़ पाते। आपने चूंकि इनके साथ आप उठती बैठती हैं, कई सारे लोगों से आपने बात भी की है, उनका जो जहनी तनाव है वो दूर करने की कोशिश की है। इस ताल्लुक से जरा हमारे नाज़रीन तक कुछ एक मैसेज पहुंचाएं। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी कि हमको हर कोई, मतलब पहले मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा हम आंखें नहीं पढ़ पाते हैं, और मौलाना रूमी फरमाते हैं कि वेयर देयर इज वुंड लाइट एंटर्स दैट। तो आपको ये नहीं पता है किसका कौन सा जख्म है और उसको कौन सी लाइट वो एंटर करे और वो कैसे लाइटन अप करे अराउंड आवर सोसाइटी, वो तो है। यानी हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, पहले तो दूसरा मुझे एक आप लोगों से ये सवाल है, आप सोचिएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वी कॉल हिम रब्बुल आलमीन। उन्होंने नहीं कहा है रब्बुल मुस्लिमीन, उन्होंने कहा है रब्बुल आलमीन, यानी वो पूरी दुनिया के रब है। यानी जो इंसान जिसके पास शायद हमें लगता है कि कुछ नहीं और ये कैसा है, उसका भी रब है। तो आप उसकी मखलूक के साथ कैसे बायसनेस कर सकते हैं, आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं, आप कैसे जजमेंट से पहले जजमेंट पास कर सकते हैं।
वी कांट डू दैट. मुझे नहीं लगता हमारे पास अथॉरिटी है एंड हमें इस चीज़ पे खुद पे वर्कआउट करना चाहिए. सो दैट इज बिल्कुल सही फरमाया. और सामा अब हम अपने इशू असली एजुकेशन जिसलिए मौजू है हमारा जो क्राल काम से, हमें बताइए कि ये जो ब्यूटीफुल जो चीज़ें हमारे सामने ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है आखिर ये, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है. इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है कि आप कुछ सिखा रही हैं इसके हवाले से, टीचिंग वीचिंग इंस्टीट्यूट त्रोवा तो किया या ताकि कई सारे लोग जो देख रहे हैं जो इस्तेफादा इंटरेस्टेड है लें. बच्चे या गर्ल्स खसूसन जिम इंटरेस्ट लद पूरा जो काम तो तुम इंटरेस्ट आसन तुम हेकन तो अप्रोच करित. मैं जो वर्कशॉप कंडक्ट करूँ मैंने इस समर्स में किया था फॉर फीमेल्स, जहाँ पे मैंने एक ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप किया था. कैसे ये मैंने थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की और मोस्टली आई प्रेफर जो हमारे स्किलफुल एग्जिस्टिंग है उनको सीखे, ताकि उनके पास एक होप मिले कि तुम वारियाह खुश गसान अगर तुम हेचान तुम बसान कि रोज जिंदा. मेन इंटेंशन सिर्फ मे गोडनेथ कि यह पॉपुलराइज गसन. अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंशन भी हुआ कि शी पॉपुलराइज. रिवाइवल के लिए जो काम हो रहा है और अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह होगा, उसके लिए जो मेरा ये है कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे होना चाहिए. इट्स नॉट कि मेरे लिए होना चाहिए, इट्स कि इन लोगों के लिए होना चाहिए जहाँ पे मिलके ये काम हो सके, जहाँ पे जिसको मेरी आइडियाज की जरूरत हो. मैं सिर्फ उस चीज के लिए हूँ बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई वांट टू सर्व थ्रू दिस ऑल्सो, कि ये हो जहाँ पे एस्टैब्लिश, जहाँ पे ये जैसे आपने कहा फीमेल्स यंगस्टर्स ये काम सीखे और कंस्ट्रक्टिव स्किल एक सीखे जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एक आखिरी सवाल और ये ऑनलाइन के हवाले से आपका है? ऑनलाइन के हवाले से ये यूजुअली इट्स अवेलेबल, इट इज अवेलेबल. ओके, मेरा एक सवाल है इस शो के आखिर पर, वो ये कि हुनर कोई भी हो, अशना ये कशीर मज अथ काम ये मशहूर है इनकी, हुनर कोई भी हो, एक इंसान की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? ये आखिरी सवाल है. मुझे लगता है हुनर एक ऊपर वाले की तरफ से आपको दिया गया एक स्पेशल गिफ्ट है और ऊपर वाले ने आपको ये किसी चीज के लिए दिया है. यानी आप लोगों के इससे बहुत काम आ सकते हैं. ये सिर्फ आपके लिए नहीं है. आप नौकरी सिर्फ शायद खुद के और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक हुनर है आप एक पूरा एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जिससे बहुत सारी फैमिलीज जो है वो अपलिफ्ट हो सकती है. तो इस हुनर की कदर आप तभी जान सकते हैं जब आपको इसका रिवॉर्ड्स यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन जब आपको वहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह. और इकरा बहुत खूबसूरत बात से आपने कहा कि हुनर गुस्सा आसुन कि हमने देखा है अक्सर कि स्कूलों में चीज वुचान पेंटिंग करा मगर ये तिमन वन तिथ पे हिसाब किताब क्या स्कूलों मज तो सह बड़ी अख सही बात आपने कही. ना मतलब मैंने भी घर पे सुना है कि ब्रोह काल तो आसान सान स्कूलन अंदर जन गवर्नमेंट स्कूल तिमन स्कूलन अंदर कहनत का हुनर यवान हेचनावन, मगर आज सह रवाज तमिक रवाज मैं बेबासान कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी स्किल बेस्ड. जो 2020 NEP 2020 का अहद ही है और जो इसमें इस ताल्लुक से बताया गया है कि स्किल बेस्ड ही. हम तो उम्मीद करेंगे कई सारे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जो ये सोचते हैं कि पढ़ लिख के हमें नौकरी हासिल होगी, अगर उन्हें कोई हुनर हासिल होता है तो वो जिंदगी में कभी किसी मकाम पर बंद नहीं होंगे. सामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ फरमाओ. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने. थैंक्स अ लॉट, हमारी खुशबख्ती. नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत खुश शुक्रिया. आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे और इस तरह से हमें रोज जो जिस तरह से आप पारो तजवीज से हमें नवाजते रहते हैं इस तरह से रोज नवाजते रहिएगा और देखते रहिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.